Good morning to everyone. This is the sum we will do on 1st January 2013. Marina Limited, an Indian importer. So on 1st January 2013, Marina Limited, who is an Indian importer, purchased 2,50,000 worth goods from Gemini Trading Company of USA. So, Marina Limited is the Indian company, Indian importing firm. I mean, it's an Indian importer who purchased from Gemini Trading Company of USA. The payment for the import was made as follows: $250,000 was worth of goods was purchased on 1st January, and the payment was made on 10th February for $1 lakh, 15th March for $75,000, and on the remaining was paid on 20th April for remaining $75,000. Marina Limited closes its book on 31st March every year. The exchange rate for $1 was as follows. देखो 1st January 49 rupees equal to $1, 10th February 49.50, 15th March 47.60, 31st March 45, and 20th April it is 46 rupees 75 paise. So here what I will do, we will today prepare the account. See, in this part, two things are asked: journal entry and Gemini account and foreign exchange fluctuation account. So what I will do, this journal entry ka many sums we have done. So the journal entries you will do as homework, and what I will do is I will be doing the ledger accounts. So in this book, what we will do, we will prepare Gemini Trading Company account in the books of, in whose books? In the books of Marina. In the books of, who is Marina? It is an importer who has imported goods, who has a business in India. Marina has a business in India. Yes, has a business in India. In the books of Marina Limited, who is an importer. This company imports goods from, which is the company from whom it has imported, Gemini Trading Company of USA. In the books of Marina, let me just bring it down. In the books of Marina, what account we will prepare? Gemini Trading Company account, and what we will prepare, and we will prepare foreign exchange fluctuation account. Foreign exchange fluctuation account. In the exam, what may happen that they may ask only ledger or they may ask only journal. But if it's a 20 marks question, both can be asked. So it depends upon how the question is. Gemini Trading Company and foreign exchange fluctuation. But exam mein journal can also come and ledger can also come. We have done few sums of journal. So we should also know ledger. So I will do, and journal देख के ledger करना बहुत easy है, लेकिन without journal ledger करना, that is वो तुमको आना चाहिए. So without journal I will do the ledger. So here date, particulars, amount, date, particular, amount.
I've done the adjusting. So date, particulars, rupees, date, particulars, rupees. So this is the format. So done. Now we can start our sum. Before starting the sum, let us understand something for the lecture. See, Marina Limited is in the books of Marina Limited, who is an Indian importer, परचेज गुड्स फ्रॉम जेमिनाई. तो ये जेमिनाई कौन है? ये जेमिनाई डेटर है या क्रेडिटर है? इज जेमिनाई अ डेटर और अ क्रेडिटर? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि हमें इजी पड़ जाए, ये समझने के लिए है. जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन है? जिनको हमें फ्यूचर में पैसे पे करने हैं. तो जेमिनाई को मराइना लिमिटेड हैज टू पे मनी टू जेमिनाई इन द फ्यूचर. करेक्ट, बिकॉज इंपोर्ट किया है तो फ्यूचर में पेमेंट करना है. किसको पेमेंट करना है? जेमिनाई लिमिटेड को. और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट में कब आएगा? जब लॉस होगा. क्रेडिट में कब आएगा? जब प्रॉफिट होगा. ये समझना है. बता, हमने दोनों अकाउंट का बेसिक समझ लिया. एक तो जेमिनाई it's a trader, sorry, it's a creditor. Why it's a creditor? Because it will be getting money in the future. Payment मिलेगा जेमिनाई को. Correct. And creditor is the liability. Liability means credit balance. और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा. ईयर एंड में इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ईयर एंड में foreign exchange fluctuation account का balance will go to profit and loss account. This is the basic. Now let us start the sum. On 1st January 2013, Marina Limited, an Indian importer, purchased $250,000 worth goods from Gemini. तो इसने गुड्स खरीदा, तो इसने परचेज किया. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? परचेज. और वो विच इज द डेट? विच इज द डेट? द डेट इज 2013 January 1st. 2013 January 1st. एंड क्यों यहाँ पे क्रेडिट में लिखा? बिकॉज जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में रहेगा बैलेंस. तो जब भी खरीदेंगे तो क्रेडिट इंक्रीज होगा. तो बाय परचेज भी लिख सकते हैं, इसको बाय परचेज भी लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इंपोर्ट परचेज. अमाउंट कैसे मिलेगा? कितने डॉलर का इंपोर्ट है? $250,000. एंड व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन 1st January? 1st January का एक्सचेंज रेट कितना है? 1st January का एक्सचेंज रेट है 49 रुपीज. सो मल्टीप्लाई करो 49 के साथ, मल्टीप्लाई करो 2,50,000 into 49. You will get the conversion in rupees. 1,22,50,000. 1,22,50,000. Did everyone got this amount? 1,22,50,000. So this is done. इतना पैसा जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी को पे करना है. इतना पैसा जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी को पे करना है. दिस इज डन. पहला एंट्री हो गया हमारा, पहला इफेक्ट हो गया. यहाँ पे अगर हम
सी इतना हो गया हमारा। नाउ अगर परचेस अकाउंट बनाते तो वहां पे भी एक डेबिट में इफेक्ट देना पड़ता, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी परचेस अकाउंट, सिर्फ हमें दो ही अकाउंट पूछा है। एंड परचेस अकाउंट दे विल नेवर आस्क ऑल्सो, इफ आस्क ऑल्सो इम्पोर्ट परचेस, फिर वो परचेस किधर जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रेडिंग अकाउंट में करना चाहिए बंद करके। और परचेस का तो एक ही इफेक्ट होता है, फिर बात एक ही एंट्री होता है, बाकी सारा एंट्रीज होता है इसका पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे वी हैव रेड द फर्स्ट लाइन, यहाँ तक क्लियर है। क्रेडिट में क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट वॉज मेड एज फॉलोज ऑन 10th February, पे करेंगे 10th February को हम $1 लाख पे करने वाले। 10th February को कितना पे करने वाले हैं, $1 लाख का पेमेंट करने वाले हैं। तो $1 लाख का पेमेंट करेंगे तो मुझे बताओ क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी इज द क्रेडिटर, इसको हम पे करेंगे तो क्रेडिटर ज्यादा होगा, क्रेडिटर का बैलेंस ज्यादा होगा या कम होगा। जब हम हमारे क्रेडिटर को, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए को पे करेंगे तो क्या होगा, उसका बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। when we will pay the Gemini, when we will pay Gemini ट्रेडिंग कंपनी $1 लाख, तो उनका बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो उसका उधार कम होगा। क्रेडिटर से जो उधार लिया है, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी से जो उधार लिया है 1,22,50,000 का, when we will make the payment, that debt will become less, कम होगा। तो इसके लिए जब भी कम होता है तो क्रेडिटर में लाइबिलिटी कम होगा। ध्यान में रखना, लाइबिलिटी ज्यादा होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट। तो व्हाट इज द डेट, 2013 February 10th, या हम लोग ऐसे लिखते हैं 10th February, 10th February को पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। व्हाट विल गो, जब पे करेंगे तो व्हाट विल गो, कैश बैंक अकाउंट। एंड व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, जरा देखो, $1 लाख, $1 लाख कितना एक्सचेंज रेट में पे करने वाले हैं, कितना एक्सचेंज रेट में पे करने वाले हैं। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन 10th February, 10th February का एक्सचेंज रेट क्या है, 49.50। टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस। हमने जब परचेज किया था एक्सचेंज रेट वॉज 49 रुपीज, और जब आज $1 लाख पे कर रहे हैं आज एक्सचेंज रेट है 49.50, सो इट्स अ लॉस। कितना अमाउंट आएगा जब पे करेंगे, इसको पे करेंगे तो हाउ मच अमाउंट यू विल गेट, मल्टीप्लाई 1 लाख बाई 49.50, यू विल गेट 49,50,000। यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, लॉस हुआ मतलब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, करेक्ट, हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। सो ज्यादा पैसा पे करेंगे मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो जो हमें लॉस हुआ, देखो जो लॉस हुआ उसका भी एंट्री पास करना है। तो 10th February यहाँ पे लिखेंगे हम, कितने का लॉस हुआ हमें, कितने का लॉस हुआ, 0.5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फॉरिन एक्सचेंज, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FEF अकाउंट। क्या लिखेंगे, FEF अकाउंट। कितने का, $1 लाख पे कितने का लॉस हुआ,
49 रुपीज था जिस दिन परचेज किया था, आज पे कर रहे तो 49.50, मतलब हम 0.50 का लॉस करा रहे, इट इज 0.50 का लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, सॉरी यहाँ पे एफ के सामने 50,000, और एफ अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एफ अकाउंट भी लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 2013 10th February, लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, टू, कौन सा नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितने का लॉस है, 50,000। दिस इज डन। हमने क्या किया, कितना पैसा मिल रहा है वो देखा, पैसा 49 पॉइंट, सॉरी मिल रहा है क्या, पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी को, तब हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। जहाँ पे हमने 49 सोचा था, वी आर पेइंग 49.50, तो इतना पैसा बाहर गया 49.50, लेकिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे 0.5, तो यहाँ पे दिखाया क्रेडिटर को हमें 49 के हिसाब से देना था, पर हम 0.5 एक्स्ट्रा दे रहे, तो इधर डेबिट में लिखा बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। हमने सोचा था 49 रुपीज देंगे, पर हम 49.50 का लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट में लिखते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो that is done. Now we will go to the next entry. This is done. Now we will go to the next entry. फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम पे करेंगे, फिर से हम पे करेंगे, फिर से हम पे करेंगे, किसको, जेमिनाई कंपनी को फिर से पे करेंगे अंडर डे। पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा, पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा, करेक्ट, पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा। नेक्स्ट हम पे करने वाले हैं, नेक्स्ट हम पे करने वाले हैं 15 मार्च को, नेक्स्ट हम पे करने वाले हैं 15 मार्च को, करेक्ट, 15 मार्च को पे करने वाले हैं, तो पे करेंगे तो मनी विल गो आउट, बराबर। एंड ये जो क्रेडिटर है ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, बट पे करेंगे तो कम होगा, लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिटर है क्रेडिट बैलेंस है, बट पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा, कम होगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में लिखेंगे। कितना डॉलर पे किया आज, $75,000 पे किया, $75,000 पे किया इनटू व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, exchange rate is, look at the exchange rate, 47.60, exactly it is a profit। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, हाउ मच प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करो हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच इज द प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करो हाउ मच इज द प्रॉफिट, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 35,70,000, $75,000 into 47.60, it is 35,70,000। नाउ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किधर आता है, प्रॉफिट कम्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ एफ अकाउंट, प्रॉफिट किधर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ एफ अकाउंट, प्रॉफिट विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ एफ अकाउंट। और यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, हमने सोचा था 49 के हिसाब से पैसा पे करेंगे, पर हमने 47.60 कम पैसा पे किया, हमने कम पैसा पे किया, तो 15 मार्च को
हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे FEF अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो लिखेंगे FEF अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? $75,000 में, $75,000 में टेल मी प्रॉफिट कितने का है? 1.4 का। 49 माइनस 47.60, 49 माइनस 47.60, तो इट इज कमिंग 1.4 एवरीवन, it is coming 1.4, 49 minus 47.6, it is coming 1.4. Multiply karo, how much amount of profit you are getting? Is it 1,05,000? Is it 1,05,000? तो दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट हम देंगे यहाँ पे डेबिट में है, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ, सी एफईएफ अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 2013 15 मार्च, 15 मार्च को इधर लिखेंगे बाई नेम ऑफ द अपोजिट अकाउंट जेमिनाई ट्रेडिंग, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,05,000, 1,05,000। सो दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ नेक्स्ट पेमेंट कभी है? नाउ नेक्स्ट पेमेंट इज ऑन 20th of April, नेक्स्ट पेमेंट इज ऑन 20th of April। पर 20th April से पहले, 20th April से पहले कम्स 31st मार्च, 21 अप्रैल से पहले। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पैसा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर रहे, और 31 मार्च को तो ईयर एंड हो रहा है। सी ईयर मरीना लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सो 31 मार्च एवरी ईयर को बुक ईयर एंड है, तो ईयर एंड की एंट्री, करेक्ट, ईयर एंड की एंट्री हमें पास करनी है। और ईयर एंड में बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज अभी भी देखो $75,000 पे करना बाकी है, हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस की एंट्री पास करेंगे, नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस की एंट्री पास करेंगे। मुझे बताओ ईयर एंड की रेट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ ईयर एंड? 45, ईयर एंड का रेट है 45, और 1 जनवरी को हमने एक्सपेक्ट किया था 49 रुपीज मिलना चाहिए। तो दिस इज प्रॉफिट, दिस इज नोशनल प्रॉफिट, दिस इज नोशनल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, हमें 31 मार्च को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, बट हम ये सोच रहे हैं अगर आज पैसा मिलता तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर ये जो बैलेंस अमाउंट है, अगर ये जो बैलेंस है 20 अप्रैल का $75,000, अगर ये पैसा आज मिलता तो हमें क्या होता? प्रॉफिट होता या लॉस? क्योंकि जिस दिन हमने 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन प्लेस किया था, हमने सोचा था कि हमें 49 रुपीज पे करना है, लेकिन 31 मार्च को एक्सचेंज रेट है 45, मतलब हम लोग को यहाँ पे 4 रुपया कम पे करना पड़ेगा। अगर आज पे करेंगे तो हम 4 रुपया कम पे करेंगे, तो इसके वजह से इट इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे हम कम पे करेंगे, कम पे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, कम पे करेंगे मतलब लाइबिलिटी कम होगा। तो 31 मार्च को यहाँ पे लिखेंगे, 31 मार्च को यहाँ पे लिखेंगे, पैसा बाहर नहीं जा रहा है, इस मनी गोइंग आउट, पैसा बाहर जाते हैं तो हम कैश बैंक लिखते हैं, बट क्योंकि दिस इज अ प्रॉफिट एंड इट इज अ नोशनल प्रॉफिट, यहाँ चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, नोशनल प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लो नोशनल प्रॉफिट। एंड ये नोशनल प्रॉफिट कितने का है? इट इज $75,000,
इंटू 4 रुपीज का नोशनल प्रॉफिट। ये 4 रुपीज कैसे मिला? 49 माइनस 45, 4 रुपीज का प्रॉफिट, करेक्ट। 4 रुपीज का प्रॉफिट, 49 माइनस, सॉरी 49 में से 45 रुपीज माइनस किया तो हमें प्रॉफिट पता चला। हमने सोचा था 49 रुपीज पे करेंगे, हमने सोचा था 49 रुपीज पे करेंगे, पर 31 मार्च का रेट है 45, मतलब हम लोग 4 रुपया कम पे करेंगे। तो इट इज 4 रुपीज का प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज, विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। सो हम इसका दूसरा इफेक्ट पास करेंगे 31 मार्च एफईएफ अकाउंट में। 31 मार्च को 31 मार्च को 31 मार्च को दूसरा एंट्री पास करेंगे। क्यों प्रॉफिट हुआ है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो 2 एफ यहाँ पे है ना, 2 एफ यहाँ पे हो जाएगा बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, बाय जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना? 3 लाख। कितना लिखेंगे इधर? 3 लाख। दिस इज ऑल्सो डन। अभी ईयर एंड है तो ये अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। ईयर एंड में दोनों अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो ईयर एंड में अकाउंट बंद करते हैं, तो जरा इसको बंद करो। कौन सा साइड हैवी? ये क्रेडिटर है तो इसका क्रेडिट साइड ही हैवी रहेगा, बिकॉज इट्स अ क्रेडिटर। सो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड हैवी रहेगा तो इट इज हाउ मच? 1 crore 23 lakhs, 1 crore 23 lakhs। और यहाँ पे भी क्रेडिट हैवी रहेगा इसका, देखो 1 crore 23 lakhs। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है? देखो 31 मार्च को देखो कितना बैलेंस आ रहा है। बैलेंसिंग आता है सबको, कौन सा साइड हैवी है उसका टोटल दोनों जगह लिखने का, एंड जो कम वाला साइड है उसको माइनस करके लिखने का। तो 49,50,000 30 प्लस 35,70,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3 लाख माइनस करो 1 crore 23 lakhs से कितना अमाउंट आ रहा है? यू आर गेटिंग 33,75,000। आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर कभी रहेगा? 2013 अप्रैल 1 ईयर एंड का अगला दिन, 1 अप्रैल लिखती हूँ, 1 अप्रैल ईयर एंड का अगला दिन ये बाई बैलेंस बॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट है 33,75,000। सो हमने जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का बैलेंसिंग कर लिया। क्योंकि क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस जब तक इसको पूरा पे नहीं करेंगे, ध्यान में रखो, जब तक ये जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी जो हमारा क्रेडिटर है इसको पूरा पे नहीं करेंगे, क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा, बिकॉज क्रेडिटर है। बाद में जाके ये टैली हो जाना चाहिए, बिकॉज पूरा पैसा पे कर दिया ऐसा होना चाहिए। जितना पे अभी भी पे करना, कितना बैलेंस है जेमिनाई को? 33,75,000। अभी भी पे करना कितना बाकी है? 33,75,000। इसके बाद ये अकाउंट को बंद करो। एफईएफ अकाउंट का कौन सा साइड हैवी है? एफईएफ अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवी है, मींस 4,05,000। कौन सा साइड हैवी है? क्रेडिट साइड हैवी है। सो प्रॉफिट, क्रेडिट ज्यादा मतलब प्रॉफिट
कितना प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस करो, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 4,05,000 से 50,000 माइनस करो, यू आर गेटिंग 3,55,000। ये क्या करेंगे, डेट क्या है, ईयर एंड क्या है, 31 मार्च को हम क्या करेंगे, 31 मार्च को हम ये बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे टू, क्योंकि एफईएफ अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। इसको हम बैलेंस, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, उसका जो भी बैलेंस है हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दिस इज ऑल्सो डन। एक लास्ट ट्रांजैक्शन बाकी है, एक लास्ट ट्रांजैक्शन बाकी है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को हमने पेमेंट किया, बाकी का $75,000 पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा। 20 अप्रैल को हमने $75,000 का पेमेंट किया, तो पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, कम होगा तो डेबिट में लिखना पड़ेगा 2013 20 अप्रैल, 20 अप्रैल पे करेंगे तो इधर डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कैश बैंक अकाउंट। कितना डॉलर पे करना है, $75,000 इनटू, जरा एक्सचेंज रेट देखो कितना है, एक्सचेंज रेट कितना है 20, एक्सचेंज रेट कितना है 20 अप्रैल का, 46.75 मिला, एक्सचेंज रेट है 46.75। मल्टीप्लाई करो व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग, मल्टीप्लाई करो व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग, 35,06,250। Are you getting this amount? 35,06,250. Now tell me, is it a profit or a loss? लॉस है, वेरी गुड, इट इज अ लॉस। कैसे, हम अभी 49 से कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखो, हम अभी 49 से कंपेयर नहीं करेंगे। तुम बोलोगे 49 में खरीदा था, अभी 46.75 हो गया रेट, तो हम कम पे करेंगे, नहीं, ईयर एंड के बाद हम ईयर एंड के रेट के साथ कंपेयर करेंगे। हमने नोशनल प्रॉफिट का एंट्री पास किया था, तो इस तभी कौन सा रेट कंसीडर किया, 45 का रेट कंसीडर किया। अभी हम कंपैरिजन करेंगे 45 के साथ, तो पता चला 1.75 का लॉस हो गया, करेक्ट, 1.75 का लॉस हो गया। तो 20th, what we will do, 20th अप्रैल, 20th अप्रैल को हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इधर डेबिट, बाद में वहां से यहाँ क्रेडिट से इट विल गो टू द एफईएफ डेबिट, तो बाई एफईएफ अकाउंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सोचा था 45 रुपीज पे करेंगे, पर हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं मतलब हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पे हमने सोचा था 45 रुपीज के हिसाब से पे करेंगे, पर हमने तो 46.75, ₹1.75 एक्स्ट्रा पे किया, तो उसके वजह से हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। हमारा लाइबिलिटी जो है 1.75 से इंक्रीज हो गया। मल्टीप्लाई करो कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना मिल रहा है, 1,31,250। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे देंगे 2013 20th अप्रैल। क्यों, लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इधर दिखाएंगे टू, नेम ऑफ द ऑपोजिट कंपनी, जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट।
जेमिनाई ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट कितना अमाउंट का लॉस है? 1,31,250 हो गया, सारा ट्रांजैक्शन हो गया। अब जरा एक काम करो, जेमिनाई लिमिटेड को बंद करो, तुम देखोगे इनको तो पूरा पेमेंट कर दिया। $250,000 का गुड्स खरीदा था, पहले $1 लाख दिया 10 फेब को, फिर 15 फेब को $75,000, फिर 20 अप्रैल को $75,000। पूरा पेमेंट हो गया, मतलब क्रेडिटर को पूरा पैसा चुका दिया, क्रेडिटर को पूरा पैसा चुका दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अकाउंट विल टैली। जरा देखो, ये अकाउंट टैली होना चाहिए। 35,06,250। चेक वेदर दिस इज टैली, चेक करो ये टैली हो रहा है। और इसके बाद एफईएफ अकाउंट को भी बंद करना है, तो कौन सा साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी है, मतलब लॉस ज्यादा है, तो यहीं पे उसका बैलेंस इधर ही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में टोटल लिखेंगे। और क्या करेंगे, ये जो सेम अमाउंट माइनस 1,31,250 माइनस नील, तो सेम अमाउंट आएगा, इसको बोलेंगे बाई। एफईएफ अकाउंट का बैलेंस किधर ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। और डेट क्या रहेगा? ईयर एंड, सॉरी ईयर चेंज हो जाएगा, 2014 मार्च 31, क्योंकि हम लोग एफईएफ अकाउंट का बैलेंस पीएनएल अकाउंट में सिर्फ ईयर एंड में ट्रांसफर करते हैं। एफईएफ अकाउंट का जो बैलेंस होता है ईयर एंड में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ईयर एंड तो अभी अप्रैल आ गया, तो मार्च में ईयर एंड है, तो मार्च तो अगले साल ही आएगा 2014 में। So this is also done. The sum is done. With this sum is done. Thank you very much, everyone.